My dear student, I am your science teacher, myself Shankar Kumar Singh. I am going to explain the science subjects about the seeds. The food supply for the baby plant, seeds with two cotyledons are called dicotyledons or dicot seeds. For example, kidney beans. A corn seed has only one cotyledons and is called monocotyledons and monocot seeds. Open the cotyledon, the baby plant inside it is called the embryo. The embryo has root and a root. The shoot later grow out of ground into the stem and roots spread under the condition. Most plants grow from seeds, but the seed don't grow into the plants. Only ripe and healthy seeds which get all the favorable condition grow into the plants. Germination is the process by which a seed produced a baby plant or seedling is the presence of water, air and warmth. If any condition is missing, the seeds will not germinate. Here is given one activity for the healthy growth germination of the seeds. Take 3 beam seeds, mark them as seeds A, B and C. Tie them at different level on a glass plate as shown in the figure, but the plate with the bean seeds inclined inside the beaker, half filled with water for 2 to 3 days. The plate should be placed in such a way that the seeds fixed in the middle remains half immersed. So we are observing here that the three type of seeds are placed. One is at the bottom and one is at the middle and one is at the top. So at the top it indicates that there is no germination of seeds because they are not getting waters. And third one is showing the second middle one is showing that there is good germination of seed because it gets everything in proper amount, whether it is oxygens, waters, warmth. And last one is it is placed at the bottom and it showed not germination because it is getting everything water, but it is not getting oxygen and warmth, that is sunlight. So the healthy germination, there should be sufficient amount of sunlight yani warmth, water and oxygen. All these three conditions should be there, otherwise there is no possibility to get the seed germination in healthy manners. So this was the activity for the germination of the seeds. अब मैं इसको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस सीड्स जो बीज हैं दो प्रकार के होते हैं। जिस पेड़ पौधे में जिस फल में एक बीज होता है उसको हम मोनोकोटिलेडन कहते हैं। और इसका उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि जो मेज है या फिर धान है के सीड्स मोनोकोटिलेडन है। और जिस प्लांट में जिस सीडर में द्विदलीय होते हैं, जैसे चना को बीज से हम तोड़ते हैं तो द्विदलीय पौधा होते हैं। ये द्विदलीयों को हम डाइकोटिलेडन या डाइकोट सीड कहते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड से जैसा हम जानते हैं कि किसी भी बीज से बड़े पेड़ तैयार होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के बीज से अच्छे पेड़ तैयार नहीं होते हैं। एक अच्छे पके हुए फल और एक अच्छा हेल्दी स्वस्थ बीज से अच्छा पेड़ तैयार होता है। अब सीडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक बीज से एक नया पौधा तैयार होता है। और एक अच्छे जर्मिनेट करने के लिए, एक अच्छा पौधा उगने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। बीज में पानी को मिलना आवश्यक है, सन धूप की रोशनी होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन हवा का होना ज़रूरी है।
अगर तीनों कंडीशन होता है तभी अच्छे से बीज जर्मिनेट होकर पेड़ पौधे के उगता है, अन्यथा अगर एक भी चीज़ की कमी हो जाती है तो यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। अब जैसा कि बुक में दिया गया है, एक एक्टिविटी है जर्मिनेशन का। एक बीकर है, ग्लास में पानी आधा रखा हुआ है, उसमें 3 तरह का सीड्स दिखाए गए हैं, रखे गए हैं। जो एक बीच में है, एक किसी ग्लास या बीकर के सबसे लास्ट अंतिम पेंदी में रखा हुआ है, एक बाहरी रखा हुआ है। यहाँ शो किया गया है कि ऊपर जो बाहर है यानी ग्लास से ऊपर है उसमें कोई जर्मिनेशन नहीं है, जर्मिनेशन नहीं हो सका। क्योंकि इसका कारण ये है कि केवल वहाँ धूप की रोशनी मिल रही है, न उसको पानी है और न उसे आपको पानी का अभाव है। हवा तो मिल रहा है, धूप की रोशनी मिल रही है। बीज का जो सीड्स है वो अच्छा जर्मिनेशन दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर सभी चीज़ मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, हवा भी मिल रहा है, धूप की रोशनी भी अच्छा है। और जो नीचे है पेंदी में, वह पानी में डूबा हुआ है, वहाँ पे धूप की रोशनी नहीं है, हवा नहीं है, इसलिए वहाँ भी नो जर्मिनेशन दिखा रहा है, वहाँ अच्छा नहीं हो सकता है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने देखा कि किसी भी सीड को अच्छा से जर्मिनेट के लिए, अच्छा से उगने के लिए तीनों का होना ज़रूरी है, और नहीं तो सीड्स नहीं जर्मिनेट होगा, नहीं पौधा उगेगा उससे। इसलिए सीड्स जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हवा भी हो, धूप अच्छी होनी चाहिए, पानी की मात्रा अच्छा होना चाहिए, ताकि एवरीथिंग इज शुड गेट फॉर हेल्दी जर्मिनेशन ऑफ सीड। अच्छा, थैंक यू। अब देखते हैं खाली